السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدر اجلاس صاحبزاد محترم معاون مسلم اسلام بورڈ کے سیکرٹری اور دوسرے معنوں میں مسلم اسلام بورڈ کی ریڑھ کی ہڈی مجھے کہنا چاہیے، ہم سب کے مقدم مقرر اور عمر محفوظ مدد عالی ہمارے پاس تشریف فرما ہے اور آج اس اجلاس کی صدارت کو انہوں نے قبول کیا۔ ہمارے مدرسے کے سرپرست اور ہمارے مدرسے کے مخلص معاون حاجی ابراہیم بھائی میرے پاس تشریف لائے، مشائخ کرام، میرے مرید و مربی مولانا امیر اللہ خان صاحب قاسمی، میرے برادر حضرت مولانا اسماعیل صاحب قاسمی نقش بندی مجددی مقدس اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت مولانا حافظ عبد الجبار صاحب مظاہری ناظم مدرسہ کھوری لاتور، میرے برادر زادے حافظ محمد ہارون صاحب نقش بندی مقدس اللہ۔ ویسے ناموں کی فہرست بہت طویل ہے، میں طوالت میں جانا نہیں چاہتا، کچھ مخصوص نام ہے، ان کا شکریہ ادا کیے بغیر آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اس مجلس میں موجود ہے مولانا عثمان فیصل قاسمی جو جمعیت علماء ضلع نادر کے صدر عالی قدر ہیں۔ اس طرح سے جناب سید اسد صاحب اسد سر جو قرآن کریم پہ انہوں نے بڑی محنت کی، اس کو آسان بنانے کے لیے بڑی محنت کی، وہ یہاں تشریف فرما ہے، ان کا مشکور ہوں بہت زیادہ۔ جناب طارق صاحب جو ورق تازہ کے ایڈیٹر ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ بڑی ناصفات کی ہوگی اگر میں طارق اسد صاحب کا تذکرہ نہ کروں جو نادر سے تشریف لائے، جمعیت علماء بھرنے والا کے نائب صدر ہیں، اور بھی ایسی عظیم شخصیت یہاں تشریف فرما ہے۔ ہر ایک کے لیے الفاظ شاید ناکافی ہوں گے، لیکن تعارف مجھ سے ہونا مشکل ہے۔ میں آنے والے سارے بھائیوں کا، علماء کا، مشائخین کا، ائمہ کا، ڈاکٹرس کا، وکلا کا، دانشوران کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں۔ شاید آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ ہم نے شدید بارش کے موسم میں یہ اجلاس کیوں طے کیا۔ اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدرسہ اللہ جو آل انڈیا مسلم اسلام بورڈ کے صدر عالی قدر ہیں، انہوں نے اپنا وقت ہمیں دیا تھا کہ میں 6 اگست کو آ سکتا ہوں۔ ان کی آمد کی بنا پر ہی ہم نے اجلاس طے کیا، لیکن ہماری بدنصیبی کہ حضرت والا 2 دن پہلے انہوں نے میسج دیا کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں شاید سفر نہیں کر سکوں گا۔ ہمیں بڑی مایوسی ہوئی، اسی مایوسی کے عالم میں ہم ہر طرف ہاتھ پیر پانے لگے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہ ہوتا۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ مدد عالی سے میں نے درخواست کی کہ آپ کو تشریف لانا ہے، اس لیے کہ مسلم اسلام بورڈ کی دوسری عظیم شخصیت آپ ہی ہیں۔ نہ صرف عظیم شخصیت ہیں بلکہ چنندہ 10 میں سے آپ ایک ہیں۔ کوئی شورا ہوتی، کوئی مشورہ ہوتا مسلم اسلام بورڈ کا تو سب سے پہلے مولانا عمرین محفوظ مدد عالی اس میں شریک رہتے، انہیں کی ایمان پر پھر وہ مشورہ ترتیب پاتا۔ بڑی معزز شخصیت ہے، ہم نے ان کے والد ماجد کو کی صحبت حاصل کی، وہ ہماری غریب خانہ آئے تھے، 2 دن میرے پاس قیام کیا۔ حضرت
तो हजरत मौलाना ने तो बहुत सख्ती से मना किया कि 2 दिन पहले मुझे कैसे चला गया। तो बाकायदा ने हमारी बसारत भेजा थी कि हम 2 दिन पहले हजरत को नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा मेरा हक है आपके ऊपर, मैं 2 घंटे पहले बोलूँगा तो आपको आना होगा। मैंने बड़ी गुस्सा खाना जरूरत की। हजरत ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। हजरत रात भर सफ़र करते हुए तशरीफ लाए। आज हजरत के प्रोग्राम तय थे, वो सबको तर्ज दिया, सबको छोड़ दिया और हमारे यहाँ खाना दौड़े दौड़े तशरीफ लाए। पूरी सफ़र की थकान भी ख़त्म नहीं हुई। मैं इनका कैसा भी अरफा में शुक्रिया अदा करूँ। ये कहूँगा ज़रूर कि खुश आमदे कि वो आया हमारी चौखट पर, बाहर जिसके कदम का तवाफ करती है। और ये भी कहूँ कि शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना महफिल जज्बात अधूरी रहती। और ये भी कहूँ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। मैं आपकी आमद पर कलमात तशक्कुर, कलमात तहनीयत, कलमात तबरीक पेश करता हूँ। आपका खैर मक़दम करता हूँ कि आपने हमारी हकीर दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजा और आप तशरीफ लाए। हमारे पास अल्फाज नहीं है, किस तरह से आपको शुक्रिया अदा करें। और ये भी आपसे बताता चलूँ मैं आपको कि मौलाना उमरैन महफूज दर्जे की उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी जो रफ्तार तरक्की है वो बड़े बड़ों को मात कर दी। इनका मकाम मुस्लिम रोड में रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये सोशल मीडिया के भी तर्जुमान हैं, उसके सदर रशी हैं। इस्लाम मुआशरा कमेटी की भी सदर रशी है। बहरहाल बहुत से इनको बात होते मुस्लिम बोर्ड के। इसके अलावा इनकी खानका चलती खानखाना रहमानिया हमारे गाँव में हजरत के हजार मुरीदीन हैं। और इतनी कम सीने में, कम उम्र में रात का जागना, रातों में उठ के रोना, आहें नींद सहर का ही इनके वतीरा है। हमको इनसे सबक लेना चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ने इतना ऊँचा मकाम दिया। अल्लाह पाक की नज़र बस से इनको महफूज रखे। और मैं आपके से बताता चलूँ कि आज से 2 साल 3 साल पहले हमारे सरपरस्त इदारा हाजी इब्राहिम भाई हमारे यहाँ 12 आते रहे थे। एक दफ़ा आए थे, तफसीर माना किया, दारुल देखा, हाजी आदम जी असली स्कूल देखा, मदरसतुल मनात देखा। उसका तो तासुर ये रहा कि जो बच्चियाँ हमारी आज मदरसे में पढ़ती या जो बच्चियाँ हमारी असली स्कूल में तालीम हासिल करती, असल में को एजुकेशन है, मखलूत तालीम है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लड़कियों की तालीम अलग से हो, इनके लिए अलग से इदारा कायम हो। अब इसके बाद उसने हजरत की इस तरफ तवज्जो मौसूल हो गई। उन्होंने कहा कि आप तो जगह देखिए, इंशाअल्लाह इमारत का काम हम जल्दी शुरू करेंगे। लेकिन 2 साल का अर्सा गुजर गया, जगह के मिलती नहीं थी, मिली नहीं हमारे। हमने 12 बुजुर्ग पेश करते रहे। हजरत ने कहा कि आपकी जब डेड लाइन ये है, इसके बाद आप मुझसे नहीं कहना कि लड़की को मदद से ताबीर करना है। अल्लाह करना ऐसा हुआ कि ये जो ज़मीन जिसमें हम बैठे हुए 5 एकड़ अराजी थी, एक साहब से हमने लिया। अभी उसका पैसे देना बाकी है, लेकिन ज़मीन हमने ले ली। और लेने के बाद फिर कई तरह की दुश्वारियाँ पेश आए। सबसे पहले दुश्वारी पेश आई, गवर्नमेंट का जो वैल्यू है वो करीबन 1 करोड़ रुपये बनता था। हमने दूसरे साल में इसको डिवाइड किया। कुछ शख्सियात बस प्राइवेट तौर पर हमने अपने कुछ भाइयों के नाम से रसीदी की। उसके बाद फिर रसीदी हमने सोसाइटी के नाम में मुंतकिल की। उसके बाद उसका परमिशन लिया गया, तामीरी काम शुरू हुआ। अभी इसकी तामीरात बहुत अधूरी हैं, काम कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाजी साहब का हुक्म था कि मौलाना खाली सफर तशरीफ ला रहे, इसे जलसा लिया जाए। हमने कहा भाई बरसात का मौसम है, शदीद तरीन बारिश हो रही है, हमारे पास कौन आएंगे, जबकि हमारी छोटी सी बस्ती है, कच्चे मकानात है, कच्चा रास्ता है, हम जंगल में बैठे हुए हैं, हम कैसा करेंगे। हाजी साहब ने कहा कि अल्लाह बहुत बड़े हैं, उनका जो ईमान है, इज़ान है, जो यकीन है, उस यकीन की बुनियाद पर हमने जैसे को रखा और हमने आप सबको मदद किया। और मैं माजरत खा हूँ तो मैं आपको अपने हाथ से खाना तो क्या खिलाता, एक गिलास पानी में पेश नहीं कर सकता। मैं माजरत खा हूँ, आप हज़रात बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात मुखलिस है, मुहिब्बीन है, उलमा नवाज है, इल्म दोस्त है, मदारस की कदरदान है। मैं आपकी आमद पर बहुत ज़्यादा मशगूल ममनून हूँ। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है
हमारे हाजी अमीरुद्दीन साहब जो मदरसे के लिए मिर्ची के साथ हमेशा पूरी साल की मिर्ची देते हो। अभी कुछ भाई मेरे पहुंचे नहीं, मुझे याद आता उनके एयानत का, मुझे जी चाहता कि उनका शुक्रिया अदा करूं दिल खोल कर। हाजी अब्दुल वहीद साहब हैं, नांदेड़ के तहसील फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और होंडा शोरूम के मालिक हैं। उन्होंने इस मदरसे के लिए पूरी बाउंड्री वाल का खर्चा दिया, करीबन 7 लाख रुपए लगते हैं। मैं ठीक है, मैं कर लूँगा उसको। एक साहब आए, उन्होंने इसमें शिदत कार्य जरूरी है, मैं दरख्त लगा दूंगा। करीबन 150 दरख्त राज मंदिर से भेजो उन्होंने। अभी आपको सुनकर हैरत होगी, इसका जो डिजाइन दिया है जनाब यूसुफ साहब के इंजीनियर के साहबजादे तौसीफ असलम खान ने, उन्हें आशुब चश्म का शिकार है, वो नहीं पहुंच सके। उनके वालिद माजिद तशरीफ फरमा यहाँ पर, पुराने में उन्होंने सबसे पहले मुझे एक चेक दिया, शायद 5,25,000 रुपये से बढ़के का चेक है, अगर उसको भर्ती के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने जज़ा करता फरमाए कि हमारा कार्य इसी तरह से चल रहा है, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। अभी इसके पीछे मस्जिद है मुसल्ले निसा, मेरी हमशिरा, मेरी हकीकी हमशिरा ने उसका पूरा खर्च दिया और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बहनों के नाम में उसके इसार साहब के लिए एक तख्ती लगाया जाए। मैं उनका भी मशकूर हूँ, उनके लिए दुआ करना वाला उनकी आना को कबूल फरमा। ये चेक की रकम है 5,52,500 रुपये। मैं इंजीनियर साहब की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, अल्लाह ने बरकत से नवाजे, खैर बरकत से नवाजे। इनके और भी अज़ाइम है, अल्लाह करे कि वो भी पूरे हों। वो मजीद ही बनना चाहते थे पूरी, लेकिन इस तरह से उन्होंने चेक दिया, इस पर मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। जनाब तारिक साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, बरकत दादा के एडिटर, उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया था, मैं सफ़र में था, क्योंकि साहब आपका प्रोग्राम में दावत नहीं मिली, लेकिन हम उसमें आएंगे और वो तशरीफ लाए। उनके साथ मेरे मुरीद मुकर्रम जनाब मुर्शिद साहब PhD हैं, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। तो आज को अपनी तरफ से तशरीफ लाए, हमारे महफिल की रौनकों में इजाफा किया। इसी के साथ साथ कुछ मस्तूरत आई हैं, जितने मर्द बैठे, मैं समझता हूँ इससे कहीं ज़्यादा औरतें बैठी हुई हैं। उसमें एक नुमाया नाम है जनाब मोहतरमा मेराजुन्निसा साहबा का, वो सना इंटरनेशनल और सना स्कूल की ये बानी जनाब एहतशाम साहब की अहलियाँ हैं। एहतशाम साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ने गली का रहमत फरमाए, उनकी अहलिया तशरीफ लाई है, मैं उनका भी वालिद तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी वो कारी अब्दुल वहीद साहब अजंता स्टोन, बड़े पुलिस आदमी है, कुरान से बड़ा उनका लगाव है। जब चाहते नियत करते और हफ्ते में निकल जाते, जब चाहते नियत करते और बरगा से निकल जाते। वो भी तशरीफ फरमा है, और कोई हमारा प्रोग्राम मिस नहीं किया, रहते हैं, उनका भी मशहूर हूँ। वतन माइनॉरिटीज कमेटी के अहबाब भी तशरीफ फरमा है यहाँ पर, उनका मशहूर हूँ। नुमाइंदा मुस्लिम काउंसिल नांदेड़ के नुमाइंदगान भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते करूँगा इंशाअल्लाह, उनका भी मशहूर हूँ। उन्होंने मेरे साथी दोस्त हैं, उन्होंने अब्दुल वहाब साहब बैदी बाजू तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग आदमी है, ऊपर नहीं डाल सकते, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशहूर शुक्रगुजार हूँ। और चलते चलते एक आम सी बात अर्ज कर दूँ कि 1976 में हमने एक मदरसे की दाखिल डाली थी, जिस मदरसे को अल्लाह ने तरक्कियात से नवाजा, और ऐसी अजीब तरक्की थी कि जो बच्चे 25 बच्चों से हमने शुरू किया था। हाफिज साहब हुसामी रहमतुल्लाह उसके पहले इजाज़त तशरीफ लाए थे, हजरत जेल से निकले थे, 1976 की बात है, इमरजेंसी थी, जेल में डाल दिए गए थे, और जेल के दौरान ही उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। कई जख्म उनको लगे थे, एक तो जेल की सजा भुगत रहे थे, बीवी का सानिया साहब, इत्तेफाक से मेरा खत पहुंचा कि भाई यहाँ मदरसा शुरू करने जा रहे, आप तशरीफ लाइए। पहले ना मोबाइल थे, ना फोन थे, ना कारें थी, ना गुंजाइश थी, ना पैसे थे। मैंने खत लिखा, 10 पैसे का खत लिखा उनको कि भाई आपको आना ही आना है। उससे जवाब हजरत ने कहा कि ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। हजरत का मामला ये था, उन्होंने कहा, खुद मुझसे कहा कि मैं किसी को तारीफ तो दे देता हूँ, उस पर अगर मुझे पेचिश के पैखा भी लग जाए तो मैं पानी के लोटा लेकर साथ रखता हूँ, लेकिन मैं तारीफ में कभी मैं उसको मिस नहीं करता। हजरत तशरीफ लाए, जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसमें मुसलमानों से बढ़ के गैर मुस्लिम भी आए थे।
اور عادل صاحب کا بیان تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، شکستہ دل کی آواز تھی، کچھ ایسی بات رہی ان کی کہ سارا مجموعہ اشش کرنے لگا. اس کو حضرت دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ اللہ آپ نقطہ نواز ہے، یہاں بچے 25 ہے، اللہ آپ اس کو 250 کر دیجیے. اور میں نے دیکھا، میرا تجربہ ہے کہ کئی سال تک بچوں کو ہم لینا چاہتے، طلبا اگر پونے چڑھتے بھی آ گئے تو اصل میں 250 رہتے تھے. شاید حضرت کی مقبول ترین دعا تھی، وہ دعا تھی جو ہدف ثابت ہوئی. وہاں پر 250 طلبا کو جمع کر رہے. اس کے بعد پھر 2000 میں ایسا ہوا، ہمارے مدرسے کے استاد سے مولانا مصطفیٰ صاحب، انہوں نے اپنے لڑکوں کا مدرسہ تو بہت اچھا ہے، چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک، بہتر ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں. چنانچہ ہم نے ایک مدرسہ لڑکیوں کا قائم کیا، حضرت البنات حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام سے. وہاں الحمدللہ 250 بچیاں پڑھتی. کچھ بچہ تو وہ ہے جو دیہات سے آتی، صبح میں آٹو میں بیٹھ کر آتی، ان کی پیاس سے آتی، ہر حال میں آتی، ہر موسم میں آتی، چاہے بارش ہو، دھوپ ہو، پانی ہو، آگے بیٹھ کے صبح سے لے کے 2:30 بجے تک پڑھتی، 2:30 بجے گھروں میں چلے جاتی. یہ مدن حاجی صاحب نے اپنے نگاہوں سے دیکھا. انہوں نے کہا بھائی بچوں کے لیے تو ضرور آسرا ہونا چاہیے، ان کے لیے مدرسہ بننا چاہیے. وہی داعیہ تھا جو اس بات کو یہاں تک پہنچایا کہ عمارت حاجی صاحب کی وساست سے، ان کی برکت سے یہ عمارت بنی. اور 2013 میں ایسا ہوا کہ ہم نے جو ہمارا قدیم ادارہ ہے گاؤں میں، ہم اس کو یہاں منتقل کر رہے تھے، تو بلڈنگ خالی تھی وہ، اس لیے ہم نے سوچا کہ وہاں کچھ نہ کچھ بھی کام ہونا چاہیے. چنانچہ ایک عصری مدرسہ وہاں شروع کیا گیا حاجی آدم کے نام سے. تو وہاں پر الحمدللہ پرائمری ہے، اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، جونیئر کالج ہے، اور بڑے اچھے انداز میں مدرسہ چل رہا ہے. ظفر الاسلام ہمارے دلی سے باہر ہیں، بڑے محنتی جفاکش آدمی ہے، انہوں نے اس کو 4 جان لگا دی ادارہ کو. ابھی ہمارے پاس اس مدرسے میں 663 طلبا ہے جو اصل تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا مدرسہ پورے تعلق میں نمبر 1 پر ہے. ابھی تو 663 طلبا ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں گنجائش دیے، ہمارے بنے وفا کی، تو انشاءاللہ ہمیں لڑکیوں کو یہاں لے کر آئیں گے، اس کو لڑکوں کا مدرسہ بنا دیں گے انشاءاللہ. چلتے یہ بات بھی آپ سب کو آپ سے عرض کروں، شیئر کروں، آپ کو سناؤں. یہ جو عمارت بنی ہے، یہ اس بنیاد پہ بنی، سب مقاصد سے بنی کہ لڑکیوں کا مسئلہ تعلیم کا بڑا پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے. لڑکیاں ہماری کالجز میں پڑھتی، ماں باپ مطمئن رہتے ہیں کہ ہماری بچی پڑھنے کے لیے گئی، لیکن وہاں کیا ہوگا بچی جانے، بچی کے ساتھ اس کا معاملہ جانا. ابھی میری اطلاع نہیں ہے، میں آپ کو گورنمنٹ کی طرح دیتا ہوں، وزارت داخلہ کی، کہ وزارت داخلہ نے اطلاع دی کہ 13 لاکھ نوجوان بچیاں اپنے گھروں سے باہر ہیں. شاید بارش کے بھی آثار ہے، صبر سے کام لے بیٹھے. محفوظ نشیب کرنا ہے، سر میں بصیرت اور افراد بیان ہوگا، ایسا بیان ہوگا کہ ایمان بھی تازہ ہو، اور ہم انشاءاللہ ایسا شہرت جائیں. دعا بھی حضرت کی ہوگی انشاءاللہ. دعا اور بیان سے پہلے میں حضرت کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ بات میں شروع کیا تھا لڑکیوں کی تعلیم کی، ہم مخلوق تعلیم سے ہٹ کر ایک یہاں پر اپنے نہج کا ایک دینی ماحول میں ہم عصری نظام چلانا چاہتے ہیں. ہم یہاں پر جونیئر کالج اور نبی 10ویں کا ہم نے اس کی پرمیشن لی. گورنمنٹ کے ایسے حالات ہیں کہ پرمیشن کی کوشش کی جاتی، اور سیلف فائنینس میں ہمارا مدرسہ ہے. ہم گورنمنٹ سے کوئی امداد قبول نہیں کرتے، صرف رجسٹریشن مدرسے کا ہے، اور گورنمنٹ کی منظور شدہ ہماری سوسائٹی ہے. اثر اس میں ہم آڈٹ کرواتے، تقریباً ہمارے مدرسے کو آج 48 سال تو بیت چکے، ہمارا مدرسہ 49 سال قابل ہے. میں ایسا کہنا تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہم نے یہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع کیا. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اس کو بھی ترقیات سے نوازے. کئی طرف سے فون آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بلانا چاہتے، ہم دعویٰ دلوانا چاہتے، اس کا سسٹم کیا ہے، شرائط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے. میں سب کے سامنے واضح کر دوں کہ ابھی ہمارا مرحلہ اجازت کے دوران گزر رہا ہے.
करीबन 18 महीने लगते उसको हमारी इजाज़त की पेपर हमारे पास आने के लिए। और फिर दूसरे मामूल ये है कि जो तामीर आप देख रहे हैं ये पूरी तामीर अभी अधूरी है, तामीर मुकम्मल नहीं हुई, अभी काम बाकी है। टॉयलेट का, वॉशरूम का, बाथरूम का कनेक्शन नहीं हुआ। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हम पूरी नहीं कर सके। आप दुआ करें अल्लाह पाक इसको पूरा फरमा दे। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम रमज़ान के बाद यहाँ पर दीनी तालीम पहले शुरू करेंगे। मोमिना कोर्स पढ़ाएंगे, यहाँ अच्छा अमला रखेंगे, यहाँ 10 हॉस्टल होगा, बच्चा उसमें रहेंगे इंशाअल्लाह, ऊपर बच्चा नहीं भी नीचे तालीम हासिल करेंगे। हमारा सबसे बड़ा निशाना ये है कि हम दीनी तालीम शुरू करें, अपनी बच्चों को दीनदार बनाएं। इंशाअल्लाह इसको हम जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए भी रमज़ान के बाद का बनाना है। उसके बाद जैसे ही इसको हमको इजाज़त मिलेगी हम इंशाअल्लाह यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से 9 और 10, 11, 12 ये 4 जमातों के साथ में शुरू करेंगे। हमारे पास स्टाफ मौजूद है, बस कमी इस बात की है कि पेपर हमें इजाज़त नहीं मिलता है। और इजाज़त अगर मिल गई हमें तो हम इंशाअल्लाह दाखिला देंगे, बच्चों को दाखिला करेंगे। और हम गौर खोज करने के बाद जो कम से कम फीस हो सकती हम वो तय करेंगे। इसी पर बोझ नहीं बनेंगे, इस पर बोझ नहीं डालेंगे। जो खाने का खर्च होगा, जो रिहाइश का खर्च होगा, जो आदमी से आदमी कर शरा है हम उतनी रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बात मशवरे के हमारा सरवर से व्यवस्था बैठक में है, वैसे मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह तय करेंगे कि इसमें हासिल की फीस क्या रखनी चाहिए और बच्चों से क्या फीस क्या मिले। अभी तो हमारे पास जो मदरसा दाखिल उसमें 450 तलबा मौजूद हैं, 453 तलबा कर हाजिर थे। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बस से लेकर तो मिशकात तालीम होगी। बड़ी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह भी 19 तलबा है मिशकात तालीम में। हर जमात में यही शरह है तलबा की हिफ्ज़ के वक्त 6 दर्जात थे। जब लॉकडाउन लगा था उस ज़माने में हमने 66 तलबा को हाफिज़ कुरान बनाया था लॉकडाउन के पीरियड में। उसके बाद फिर सिलसिला चला, कभी 30 कभी 31 तलबा हमारे पास हाफिज़ कुरान बनते। हमारे मदरसे ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों उलमा तैयार किए और कुछ तो वो काबिल तरीन उलमा है जिन पर मुझे नाज है, उनकी सलाहियत पर, उनकी इस्तेदाद पर, उनकी काबिलियत पर मुझे बजात पर नाज है, फख्र है कि उन्होंने यहाँ से जाने के बाद मदारिस कायम किए और करीबन 50 से ज़ायद मदारिस हमारे तलबा के फैज़ से अफगानिस्तान ने कायम किए। आप कहीं भी जाइए, मराठवाड़ा में, आंध्रा में, तेलंगाना में, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हमारे मदरसे के फैज़ मिलेंगे आपको। और एक मदरसा बाकायदा तो उनका अपना मदरसा है, बड़ी इमारत है, तलबा को लेकर बैठे जंगल में मंगल का समा बनाए हुए हैं। हम तो मेरा पूरिया नशी है, हम दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाना चाहते थे। अल्लाह ने हम पर अपना फजल फरमाया, इमारत की अल्लाह ने हमें अच्छी और हम बहुत सुकून से बैठ के तालीम दे रहे हैं बच्चों को। हमारे दारुल में करीबन 35 से ज़्यादा के स्टाफ है, जिसमें 27 मुअल्लिमीन हैं। अभी आपने हज़रत शेख को सुना, वो यहाँ के शेख उस्ताद हदीस हैं, शेखुल हदीस हैं। मौलाना अमजद साहब तो इस मदरसे के लायक फैज़ सदर मुदर्रिस हैं। बड़ी मेहनत से इस सारे निज़ाम को लेकर चलते, उनके साथी रफ़क़ा उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन है, बहुत खुश हैं, तलबा उनसे मायूस है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनके ऊपर बरकत अता फरमाए। और ये भी अर्ज़ को चलते चलते जो लड़कियाँ हमारे यहाँ 2000 से तालीम हासिल कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आलिमियत के हिसाब उनको हम पढ़ाते आए अभी तक। लेकिन यहाँ मदरसा जब आ जाएगा तो हम मोमिना को शुरू करेंगे ताकि शार्ट और मुख्तसर हुक्म में हम उनको दीनदार बना के यहाँ से निकालें। और अल्लाह का ऐसा करम है हिसाब से लड़की मदरसे पर कि जो बच्ची आलिमा बनती उसका रिश्ता फौरन हो जाता, फिर वो किसी और घर जाती, वहाँ जाकर एक मदरसा कायम करती और मदरसा वहाँ बनाती। उससे कहती कि दुआ के लिए तुम पहुँच जाओ, हमने एक मदरसा कायम किया। तो फैज़ अल्लाह ने इसमें से जारी सारी फरमाए। और ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि मेरा दिल इस बात को कहने में बल्लियों से उछल रहा है, मेरा दिल सरशार है। और मैं उनको खिराज अक़ीदत पेश करूँगा, खिराज तहसीन पेश करूँगा हाजी बशीर भाई को, जो इस मदरसे के शुरू से ही सरपरस्त रहे। हमारी उंगली पकड़कर हमको चलाया, अपनी बेटियों से, अपने दामादों से, अपनी बहनों से हमारी इमदाद जमा कर ला के हमारे हवाले करते थे। और सुख में दुख में हमारे साथ खड़े हुए थे। वो
मस्जिद की जो पुरानी इमारत है तो उन्हीं की मरहूम मिन्नत है। और ये भी मैं बात को वाज़ेह करूँ कि हमने जो 1988 में जगह ली थी 5 से 7 एकड़, वो 7 एकड़ ज़मीन भी हाजी साहब की ही कहने पर हमने ली थी। 1988 में जो हमने ज़मीन ली थी 7 एकड़ 5,000 रुपये एकड़ से। अब यहाँ पर रेट चला करीबन 40 से 50 लाख रुपये का। तो 5,000 रुपये एकड़ से हाजी साहब के महज इखलास में ये ज़मीन हमें दिलाई। और फिर एक उतार चढ़ाव रास्ते के दौरान आते रहे, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे 7 मौलवीन मदरसे से अलग हो गए और ऐसा अलग हो गया कि तलबा भी ना चले गए और मौलवी भी चले गए। मैंने हाजी साहब सूरत आ रही है कि असदा भी चले गए, तलबा भी लेके चले गए। हाजी साहब ने कहा कि देख अल्लाह बड़ा है, तो मदरसा तेरे बाप का है, तो मदरसा मेरे बाप का है। अल्लाह ने कायम किया, अल्लाह चलाएंगे। हाजी साहब कहने का मुझे ढारस मिली, हिम्मत न दी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मान का तलबा आना शुरू हुए तो 300 तलबा जमा हो गए। अभी मदरसा पूरी बाहर के साथ चल पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उस साल जलाल शरीफ उन्होंने कायम की, जमात हमने कायम की। अभी यहाँ बहुत से तलबा वो बैठे हुए हैं जो कायना सबूत है, जिनकी इल्मी बुलंदी इतनी बुलंद है कि उनकी इल्मी तफव्वुज़ कसम खाई जा सकती है। वरना मुफ्ती अब्दुल खालिक, मौलाना कासिम साहब, मुफ्ती अब्दुल माजिद और पता नहीं कितने बच्चे मेरे बैठे हुए हैं जो इस मदरसे के फैज़ याफ्ता है, टूट के चाहते, मोहब्बत देते, बहुत ज़्यादा पेश आते। तो आज भी आए हैं और मैं उनको बता दूँ कि इदारा आज इजलास उन्हीं की तरफ से मौजूद किया गया। इसके आप मेज़बान हैं, आप दाई हैं, आप तशरीफ़ हैं, आप सब कुछ हैं, आपकी तरफ से इजलास हो रहा है। हम तो बस बनाना है, क्योंकि बात मुझे कोई तवील नहीं करनी है। हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है, मुख्तसर से मैंने अपनी कारगुजारी पेश की ताकि हज़रत वाला पहली दफ़ा तशरीफ़ लाया है तो सारी बातों से वाक़िफ़ हो जाए। मैं चलते फिर और सारे मेहमानों का, इससे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, दानिशवरान भी है, असतिज़ा भी है, समाजी दिल्ली कायदीन भी है और बहुत बड़ी शख्सियतें बैठी हुई हैं। मैं आपका नाम भी ले नहीं सकूँ, मैं आप खिदमत में कुछ पेश नहीं कर सकूँ। मैं आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताहीन हयात आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। और आपसे भी दुआ गुजारिश है इस मदरसे की मदद वापस की दुआ फरमाए। और सबसे बड़ा आपके अलमिया ये है कि सारी उम्मत ये सब की सब परेशानी की शिकार है। कितनी परेशान है, लोगों की निगाह में हम खटक रहे हैं, एक तारे की तरह से चल रहे हैं। अगर आप दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह पर इंशाअल्लाह अच्छे फैसले नाज़िल फरमाएंगे। वरना हमारी हालत दिन ब दिन बिल्कुल ही बेपतवार की कश्ती की जैसे हो चुकी है। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मंजिल कौन सी है, हम नहीं समझ सकते। हम मामूल नहीं है, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, हमारी जान और माल महफूज नहीं है, हमारी इज्जत आबरू महफूज नहीं है, हमारे अमलाक महफूज नहीं है। और तो और क्या, अभी हरियाणा में एक मामूली वाक़ा पेश आया, कई शहर लोग खाली करके चले गए, कई शहर लोग खाली करके चले गए। पहाड़ों में जाकर फनानी, उन पहाड़ों पर रहने वाले भी उनकी निगाहों में खटक रहे हैं। वो समझ रहे हैं पहाड़ों पर जाकर वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं। पहाड़ों में कौन जाकर फायरिंग करता, किसके पास हथियार है, किसके पास असला है। वहाँ तो दरिंदे है, वहाँ तो हसरात अर्ज है, उनकी खुद जिंदगी उन्होंने जोखिम में डालकर पहाड़ों पर बना ली, तो वो भी उनको गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, वो आग जो आज हरियाणा में लगी, वो आग शायद पूरे मुल्क में फैल सकती है। तो राजस्थान झुलस रहा है, मेवात झुलस रहा है, दिल्ली उसी की लपेट में और न जाने कितने ऐसे मकामात हैं जो उसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको गुजारिश करूँगा कि मिल्लत की बका, मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी दुआओं से ही हम उसको कर सकते हैं। दुआ में वो अल्लाह ने ताकत रखी, हदीस में है, हुज़ूर ने फरमाया अल क़ज़ा यरजुल वरा, तक़दीर का जो लिखा हुआ है वो तो लौह महफूज़ है, मैं बिल्कुल ही महफूज हो चुका। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि दुआ अल्लाह ने ऐसा हथियार दिया मोमिन को, इसमें क़ज़ा और क़दर के फैसले बदल सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है अपनी दुआ में सारे मिल्लत को याद रखें। उम्मत मुस्लिम आपकी दुआओं की मोहताज है, ये मदरसा आपकी दुआओं के बहुत ज़्यादा मोहताज है। ये मदरसा ही नहीं, पूरे मुल्क में फैले मदारिस, पूरे मुल्क में फैली मसाजिद, सब के सब आपकी दुआओं की मोहताज है। मैं एक आखिरी गुजारिश करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि हमारे शेख उस्ताद साहब ने फरमाया कि तुम अगर मदरसों की कदर करोगे
تو اللہ تمہارے پاس مدرسہ رکھیں گا ان اللہ کے مدرسے کو تم سے چھین لے گا. اور فرمایا کہ تمہارے مساجد کی قدر کرو گے تو مساجد تمہارے پاس رہیں گی, انہیں مساجد تم سے چھین لی جائیں گی. میرے بھائیوں آج ایسی حالت ہے, اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی, علماء کی قدر نہیں کی اور مساجد کی ہم نے قدر نہیں کی, اپنی زمینوں سے مساجد کو ہم نے آباد نہیں کیا تو شاید مساجد بھی ہم سے چھینی جائیں گی. آج مساجد کو دن دہاڑے اس کو آگ کے حوالے کیا جا رہا. وہ کیا اس معصوم امام کا گرو تھا جس کو چاقو سے حملہ کر کے اس کو پہلے مارا گیا پھر اس کو جلا دیا گیا, کیا خصوص تھا اس کا. بھائیو بزرگوں دوستوں, حالات بالکل ایک قابل بیان ہے اور سننے کی بھی طاقت نہیں ہے, بولنے کی بھی ہمت ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ مدرسے کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے بھی ان کے تحفظ اللہ سے مانگیں, اپنی زمینوں سے مساجد کو آباد کریں, قرآن کی تلاوت کو وتیرہ بنائیں, اپنے گھر میں دینی ماحول کو پیدا فرمائیں. میرا آپ کا احترام ہے, اسی بات کو ختم کرتا ہوں.